کی پرسپیکٹو دستیاب. فی الحال ایسے بھی اجازت. خدا حافظ. آداب ناظرین، اردو خبروں کے ساتھ میں محمود احمد حاضر. پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر. پورے ملک میں وجیلنس بیداری ہفتہ آج سے ہوا شروع. وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے مختلف محکموں کے انتظامی سیکرٹریوں، جموں اور سری نگر میں موجود سبھی افسران، ڈپٹی کمشنروں، کشمیر اور جموں کے ڈویژنل کمشنروں، مختلف سکولوں کے سربراہان اور طلباء کو دیانتداری کا دیا حلف. تعلیم، سماجی بہبود اور صحت کی وزیر سکینہ یتو نے ڈگری کالج اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سنبل کا کیا دورہ. کہا کہ جموں کشمیر کو ترقی کے راستے پر گامزن کرنا موجودہ حکومت کی ترجیحات میں شامل. وزیر اعظم نریندر مودی اور اسپین کے ان کے ہم منصب نے واڈودرا گجرات میں C-295 طرز کے فوجی ہوائی جہاز تیار کرنے کے لیے ٹاٹا ایئر کرافٹ کمپلیکس کا مشترکہ طور پر کیا افتتاح. اور اخنور میں ملیٹنٹوں اور فوج کے درمیان ایک جھڑپ میں ایک ملیٹنٹ مارا گیا. اب خبریں تفصیل سے. آج سے پورے ملک میں وجیلنس بیداری ہفتہ منایا جا رہا ہے. اس کا مقصد عوامی زندگی میں دیانتداری کو فروغ دینا اور معاشرے سے بدعنوانی کا خاتمہ کرنا ہے. مذکورہ ہفتے کا موضوع ہے ملک کی خوشحالی کے لیے دیانتداری کا کلچر. اس موقع پر مختلف وزارتوں، محکموں، سرکاری ملکیت کے اداروں، بینکوں اور دیگر اداروں میں سرکاری اہلکاروں نے وجیلنس ہفتے کے تعلق سے حلف لیا. بھارت میں یہ دن ہر سال وجیلنس بیداری ہفتے کے طور پر منایا جاتا ہے، جس میں بھارت رتن سردار ولبھ بھائی پٹیل کو یوم پیدائش آتا ہے. وجیلنس بیداری ہفتے کے تحت آج سری نگر کے سول سیکریٹریٹ میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے اپنے کابینہ وزراء کے ہمراہ مختلف محکموں کے انتظامی سیکریٹریوں، جموں اور سری نگر میں موجود سبھی افسران، ڈپٹی کمشنروں، کشمیر اور جموں کے ڈویژنل کمشنروں، مختلف سکول کے سربراہان اور طلباء کو دیانتداری کا حلف دلایا. جموں کے ڈویژنل کمشنر، ڈپٹی کمشنروں سمیت وہاں مقیم افسران نے آن لائن موڈ پر اس میں حصہ لیا. اس موقع پر تقریر کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے تمام محکموں کے عہدیداروں سے تاکید کی کہ وہ سرکاری کام کاج کو چلانے میں شفافیت لانے کے لیے کام کریں. انہوں نے وجیلنس بیداری ہفتے کو منانے کے حوالے سے کہا کہ یہ ہمیں عوامی کاموں کو بہتر تال میل اور دیانتداری سے انجام دینے کی یاد دہانی کراتا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ عوام نے ان کو حالیہ الیکشن میں مینڈیٹ دیا ہے اور اس مینڈیٹ کی عزت رکھنے کا کام سرکار کو کرنا ہے اور عوام کے مسائل کو شفاف طریقے پر حل کرنے کی موجودہ وقت میں اشد ضرورت ہے. وجیلنس بیداری ہفتے کے تحت آج راج بھون سری نگر میں بھی ایک تقریب منعقد کی گئی، جس میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے افسروں کو دیانتداری کا حلف دلایا. لیفٹیننٹ گورنر نے تمام افسروں سے کہا کہ وہ اجتماعی اور انفرادی سطح پر رشوت ستانی کے خاتمے اور انتظامیہ کو شفاف اور جواب دہ بنانے کے لیے کام کریں. اینٹی کرپشن بیورو نے بھی آج وجیلنس بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. اس پروگرام کا انعقاد امپاڈ کے آڈیٹوریم میں کیا گیا، جس میں ڈائریکٹر جموں کشمیر اینٹی کرپشن بیورو شکتی کمار پاٹھک نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. اس پروگرام کا مقصد انتظامیہ میں شفافیت کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے اور لوگوں کو یہ یقین دلانا ہے کہ معاشرے سے رشوت ستانی کو ختم کرنے کے لیے سرکاری سطح پر اقدامات جاری ہیں. ناظرین، خبریں جاری ہیں، پہلے یہ وقفہ. ایکسکیوز می سر. یہ میرا استعفیٰ. کیوں؟ سر یہاں کے ٹیوب لائٹ سے میرے کو الرجی ہوتا ہے سر. اوکے. مجھے یہاں کا واسطو پسند نہیں ہے. راکٹ سائنس سیکھنا ہے. مجھے بالی ووڈ میں جونیئر آرٹسٹ کا رول ملا ہے سر. سر میرا کیا کوئی ریزگنیشن. مذاق ہے کیا؟ ایک سے ایک گھٹیا ریزن دے کے ریزائن کر رہا آپ نے موہت کو HIV کے کارن جاب سے نکالا تھا، وہ نہیں تھا گھٹیا ریزن. بھید بھاؤ ان کے ساتھ کیجئے جو HIV پازیٹیو لوگوں کے ساتھ بھید بھاؤ کرتے ہیں. موہت، میرا استعفیٰ. کیا ہے یہاں کا باس ٹھیک نہیں ہے یار. سوری یار. کام کیجیے آپ لوگ. HIV ایڈز اپنے پن کو نہیں مار سکتا.
विजिलेंस बेदारी हफ्ते के तहत आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के सरबराह एस संजीव ने अफसरों को दियानतदारी और रिश्वतसतानी से पाक मुआशरा बनाने का हलफ दिलाया। इस तकरीब में दूरदर्शन न्यूज़ श्रीनगर के सरबराह काजी मोहम्मद सलमान, न्यूज़ एडिटर शेख मुदस्सिर अमीन और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर संजय कौल भी मौजूद थे। बडगाम पुलिस ने आज विजिलेंस बेदारी हफ्ते के तहत डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन्स में एक तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब के दौरान पुलिस अफसरान और अहलकारान ने रिश्वत से पाक समाज बनाने का हलफ लिया। तकरीब में सभी सतह के पुलिस अफसरान और अहलकारान ने शिरकत की। तालीम, समाजी बहबूद और सेहत की वजीर सकीना इत्तू ने आज डिग्री कॉलेज और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का दौरा किया। उन्होंने इस मौके पर कॉलेज ऑडिटोरियम का इफ्तिताह किया। वजीर तालीम ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि मौजूदा सरकार तलबा की बेहतरी के लिए पुरअज़्म है और जम्मू कश्मीर को तरक्की के रास्ते पर गामजन करना मौजूदा हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। उन्होंने बाद में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सुंबल का दौरा किया और सेंटर में मरीजों को फराहम की जाने वाली सहूलियात से आगाही हासिल की। वजीर मौसूफा ने मरीजों और तीमारदारों से भी मुलाकात करते हुए उनसे तिबी सहूलियात के हवाले से जानकारी ली। खुराक और उमूरी सारिफीन के वजीर सतीश शर्मा ने आज खोर ब्लॉक का दौरा किया और कई अवामी वफूद से मुलाकात की। लोगों से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये नई हुकूमत जम्मू और कश्मीर की तरक्की की वादाबंद है और मौजूदा सरकार इस सिलसिले में अवाम का ताउन हासिल करने के लिए पुरउम्मीद है। वजीर मौसूफ ने सड़क राब्तों की बहाली, बिजली बिलों और राशन कार्डों समेत मुख्तलिफ बुनियादी सहूलियात में दरपेश मुश्किलात के हवाले से जानकारी हासिल की और लोगों को यकीन दिलाया कि वो इन बुनियादी मसाइल को हल करने के लिए फौरी इक़दामात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी और MLA खानियार अली मोहम्मद सागर ने आज श्रीनगर में JLNM अस्पताल और गौसिया अस्पताल का दौरा किया और वहां बीमारों को फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से ताकीद की कि वो मरीजों को तबी सहूलियात बाहम रखने के दौरान इंसानी जज्बा साथ रखे। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से बात करते हुए उन्हें यकीन दिलाया कि मौजूदा सरकार अस्पतालों का बुनियादी ढांचा सही बनाने के लिए वादाबंद है और इन दो अस्पतालों के लिए वो ज़ाती तौर पर वजीर सेहत सकीना इत्तू से खुसूसी मुलाकात करेंगे। MLA छानपोरा मुश्ताक गोरू ने आज अपने हल्का इंतखाब में कई तरक्याती कामों का जायजा लिया और आवाम को फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में अफसरान से जानकारी हासिल की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और स्पेन के उनके हम मनसब ने आज वडोदरा गुजरात में C-295 के तर्ज के फौजी हवाई जहाज तैयार करने के लिए टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स का मुश्तरका तौर पर इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि टाटा एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स से आलमी एरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में एक भरोसेमंद साझेदार की हैसियत से भारत की पोजीशन मजबूत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने भारत के दिफाई शोबे की गैर मामूली तरक्की और सरकार की जानिब से किए गए कई इक़दामात को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पिछले 5 साल के दौरान मुल्क में दिफा के शोबे में तकरीबन 1000 स्टार्टअप इदारे कायम किए गए हैं। गुज़िश्ता 10 साल के दौरान भारत की दिफाई बरामदात में 30 गुना इजाफा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब 100 से ज्यादा मुल्कों को दिफाई साजो सामान बरामद कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मजीद कहा कि वडोदरा में एयरक्राफ्ट कम्प्लेक्स से न सिर्फ भारत स्पेन ताल्लुकात मुस्तकम होंगे बल्कि मेक इन इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड मिशन को भी तक़वियत हासिल होगी। वज़ारत इत्तलात व नशरियात में डिप्टी सेक्रेटरी बजट प्रेमचंद ने आज दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर में कामकाज के हवाले से एक मीटिंग तलब की। मीटिंग में कई सीनियर अफसरान और असिस्टेंट डायरेक्टरों के अलावा RNU आकाशवाणी श्रीनगर के सरबराह सुनील कौल, न्यूज़ एडिटर DD श्रीनगर शेख मुदस्सिर अमीन, फील्ड पब्लिसिटी ऑफिसर CBC अनंतनाग और श्रीनगर शाहिद मोहम्मद लोन और नसीर अहमद राथर, न्यूज़ एडिटर AIR श्रीनगर अशफाक अहमद शाह और अकाउंट ऑफिसर DD के श्रीनगर संजय कौल भी मौजूद थे। इस दौरान उन्होंने सफाई मुहिम 4.0 का भी जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने एक पेड़ मां के नाम मुहिम के तहत एक पौधा लगाया और अफसरान से ताकीद की कि वो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए पौधे लगाने का काम करें। बाद में मज़कूरा अफसर ने श्रीनगर में प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो श्रीनगर, ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर और CBC श्रीनगर के दफातर का भी मुआयना किया।
अखनौर में आज सुबह एक तसादुम में एक मिलिटेंट मारा गया। इत्तलात के मुताबिक आज सुबह मिलिटेंटों ने आर्मी कॉन्वॉय में जा रही एक एम्बुलेंस पर फायरिंग की। ताहम इस हमले में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। इस हमले के बाद फौज ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई शुरू की और पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया। इस दौरान मौजूद मिलिटेंटों के भागने के सारे रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं और एक मुनज़्ज़म कार्रवाई की गई, जिसके बाद अब तक एक मिलिटेंट मारा गया और दीगर मिलिटेंटों की तलाश जारी है। फौजी ज़राए के मुताबिक इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है ताकि दीगर मिलिटेंटों को भी काबू किया जा सके। बीजेपी के जम्मू कश्मीर यूनिट के सदर रविंदर रैना ने आज बडगाम के नादीगाम में डॉक्टर शहनवाज के घर जाकर उनके अहल खाने से ताज़ियत की और सोगवार खानदान की ढारस बंधाई। इस मौके पर रविंदर रैना ने गगनगीर हमले जैसे दहशतगर्दाना हमलों पर सख्त अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मासूमों के कत्ले आम से कुछ भी हासिल नहीं होता। उन्होंने पाकिस्तान को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो अपने मसाइल की जानिब तवज्जो दे, न कि जम्मू कश्मीर में हालात खराब करने की तरफ। उन्होंने कहा कि हमारी फौज पूरी तरह से चौकस है और किसी भी दहशतगर्दाना कार्रवाई को कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाने के हवाले से घंटाघर लाल चौक में खुसूसी पुलिस बैंड शो का एहतमाम किया। इस मौके पर मकामी लोगों की एक बड़ी तादाद ने शो को देखा और जम्मू कश्मीर पुलिस को इस शो के लिए शाबाशी दी। पुलिस के मुताबिक इस तकरीब का मकसद मुख्तलिफ लोगों को एक साथ एक जगह पर जमा करना था और उन्हें पुलिस की इस अनोखी कारकर्दगी से महजूज कराना था। पुलिस शोहदा हफ्ते के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुलगाम ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर कस्बे में घंटाघर के करीब एक यादगारी परेड का एहतमाम किया गया और उन शहीदों को याद किया गया जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस मौके पर पुलिस के कई अफसरान मौजूद थे। उधर पुलिस शोहदा हफ्ते के तहत आज डिस्ट्रिक्ट पुलिस कुपवारा ने शहीद पुलिस एहलकारों को खराज पेश करने के लिए यादगारी दिन मनाया। इस मौके पर कल्चरल प्रोग्राम का भी एहतमाम किया गया जिसमें शहीद पुलिस एहलकारों को उनकी बहादुरी के लिए याद किया गया और खराज अकीदत पेश किया गया। तकरीब पर जिले के पुलिस अफसरान और एहलकारान मौजूद थे। दुनिया भर में आज स्ट्रोक डे के हवाले से मुख्तलिफ तकारीब का इनेकाद किया गया। श्रीनगर के सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के शोबा न्यूरोलॉजी की तरफ से रन फॉर स्ट्रोक का एहतमाम किया गया। दौड़ को प्रिंसिपल जीएमसी श्रीनगर डॉक्टर इफ़त हसन ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ निशात बाग से शुरू होकर फोरशोर रोड पर इख्तिताम पजीर हुई। इस रन में मुख्तलिफ रजाकारों, डॉक्टरों और आम लोगों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। दौड़ में शरीक माहिरीन सेहत ने लोगों को सलाह दी कि वो अपनी सेहत का खास ख्याल रखने के लिए वर्जिश का एहतमाम किया करें ताकि वो ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और दीगर अमराज से दूर रहें। इस मौके पर डॉक्टर बशीर सनाई ने दूरदर्शन न्यूज के साथ बात करते हुए कहा, Stroke is globally the second leading cause of death and it is the third leading cause of disability. So in our country, which comes in the low income and middle income country, we contribute 13.3 disability average daily this year's lost 13.3% for the global burden. So we are conducting this run for the stroke to raise the awareness for the prevention, management and the डिटेक्शन ऑफ द स्ट्रोक। ये इसलिए हमने ये रन ऑर्गेनाइज किया है कि लोगों को अवेयरनेस हो स्ट्रोक के बारे में। अगर आप देखिए ग्लोबली 18 लाख पीपल ऑल थ्रू आउट द ईयर कैन डेवलप स्ट्रोक। सो 18 लाख लोगों को स्ट्रोक होता है ग्लोबली हर साल। तो उसके जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक यू हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, ओबेसिटी, स्मोकिंग, सो रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ओबेसिटी। तो इसलिए हमने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरोलॉजी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर ने, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि आपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करनी है, यू शुड रन एंड दैट इज़ द थीम ऑफ टुडे। सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज उनकी एसोसिएशन के लिए इंतखाबात मुनक्कद किए गए। इंतखाबात में साबिक सेक्रेटरी रेड क्रॉस किफायत रिजवी को सदर और दूरदर्शन केंद्र के साबिक एडीजी डॉक्टर रफीक मसूदी को नायब सदर मुंतखब किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।